we'll be continuing our series, which is our deductions under Chapter 6A, Section 80C to 80U. So till time we have covered the previous sections as 80C, 80CCC, 80D, right? So now we'll be continuing the series with Section 80G. So this Section 80G of the Indian Income Tax Act 1961, it allows for a tax reduction for contributions to certain relief funds and charitable institutions. That means whatever donations that you make to any relief fund or any charitable institution, you will be getting a deduction for the same under Section 80G. And this particular deduction is available to all the individuals, all the firms, company, Hindu undivided family, NRIs even. So that means even our non-resident Indians, they are eligible for claiming a deduction under Section 80G. Now, when we talk about the Section 80G deductions, basically we are having four sort of our categories. That means we are having such categories which define that whether the donation is entitled for a 100% deduction or a donation is entitled for a 50% deduction. If you could just look out onto the screen, you will be having four sort of categories, that is type A, type B, type C and type D. Our type A, it is for the donations which are entitled to 100% deduction without qualifying limit. Type B will be for donations which are entitled to 50% deduction without qualifying limit. Type C for donations entitled to 100% deduction subject to qualifying limit, and type D for donations entitled to a 50% deduction subject to qualifying limit. Now when I say this type A, B, C, D and subject to qualifying limit or not subject to qualifying limit, what do I mean by the same? That means if I give any donation to any institution or any entity, as I have said that it can be a charitable institution or any relief fund, right? And if I make any sort of a donation to all these charitable institutions or entities, government has specified four categories, that if any qualifying limit for that category of our institution applies, then you have to go by that qualifying limit, and then too you have to see whether you are 100% entitled for the deduction or 50%. सो बेसिकली यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप डोनेशंस कर रहे हैं, आपने ब्रॉडवेज में चार कैटेगरीज रखी, जहाँ पर आपने कहा कि दो कैटेगरीज आपकी जो है जहाँ पर कोई क्वालिफाइंग लिमिट नहीं है, यानी कि कोई अपर कैपिंग नहीं है, आपने जितना डिडक्शन दिया, जितना डोनेशन दिया उसका 100% आपको डिडक्शन मिलेगा या फिर उसका आपको 50% डिडक्शन मिलेगा, जो कि है आपका टाइप ए एंड टाइप बी. That means whatever donations that you give to a charitable institution, you will be entitled to a 100% or a 50% deduction for the same. इसमें कोई आपका if and buts नहीं है, कोई qualifying limit नहीं है. Whereas type C and D क्या कहते हैं? Type C and D कहते हैं yes, you are entitled to 100% or 50% deduction, but now you are subject to a qualifying limit. That means आपको एक लिमिट के जो है तहत रहकर ही वो डिडक्शन का बेनिफिट मिलेगा, आप उस अपर कैपिंग को क्रॉस नहीं कर सकते हैं. This is what we mean when we say that we are having a qualifying limit, right? So we are having these four categories. Now taking one by one each of these categories, first is our type A. That means whatever the list of donations which are eligible for our 100% deduction without qualifying limit, यानी कि इस पर कोई भी आपका qualifying limit नहीं लगेगा, और अगर आप इन institutions, इन संस्थानों में अगर आप donations करते हैं तो आपको 100% deduction मिलेगा. अब वो कौन कौन सी आपकी लिस्ट है? इट सेज कोई भी आपका अप्रूव यूनिवर्सिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है of your national eminence, that means any institution which is having a national recognition, that will be eligible for a 100% deduction without any qualifying limit. अगर आपने 1 लाख रुपए डोनेट करा है तो that means that 1 lakh rupees, right, it will be entitled for a 100% deduction under your section 80G. सिमिलरली अगर कोई भी जिला साक्षरता समिति है जो कि एक डिस्ट्रिक्ट में कंस्टिट्यूट होती है, जिसका चेयरमैन जो होते हैं वो कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट होते हैं, अगर आपकी
इस टाइप की कोई भी जिला साक्षरता समिति है तो उसके के लिए भी आपको 100% डिडक्शन जो है वो आपको अवेलेबल होगी। सिमिलरली अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट ने फंड सेटअप करा है जिससे यू आर प्रोवाइडिंग अ मेडिकल रिलीफ टू द पुअर, राइट, और द मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस ऑफ द कम्युनिटी, राइट, सो इन दैट केस यू विल बी गिवन अ 100% डिडक्शन, राइट। सो जितना भी आपने डोनेशन करा वो आपको 100% जो है वो आपका एलिजिबल है। वैसे ही आपका एक नेशनल इलनेस असिस्टेंस फंड है, नेशनल ट्रस्ट वेलफेयर जो है फॉर दी यू कुड से द पर्सन्स विच आर हैविंग सॉर्ट ऑफ ऑटिज्म, cerebral palsy or mental retardation, right? So any person, any welfare which is being formed for the you could say the welfare of the person having such disabilities. Similarly, if you are contributing to a national sports fund, national cultural fund, any fund which is centric towards the technological development and application, any fund which is centric towards the national children's fund, so these funds you could say these are eligible without any qualifying limit for a 100% deduction. Similarly अगर कोई भी चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड है, आपका आर्मी वेलफेयर फंड्स हैं, राइट, या इंडियन नेवल के या इंडियन एयरफोर्स के फंड्स हैं जो आपके, those funds are eligible for a 100% deduction. सिमिलरली चीफ मिनिस्टर जब रिलीफ फंड की बात करें, वैसा ही एक आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने चीफ मिनिस्टर साइक्लोन रिलीफ फंड इस्टेब्लिश करा था। उसके अंदर अगर आप कुछ डोनेशन करते हैं तो 100% ऑफ द अमाउंट इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन। सिमिलरली महाराष्ट्रन गवर्नमेंट दे हैव फॉर्म्ड अ महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड, सो दैट इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर योर डिडक्शन एज पर योर 100% कैटेगरी, राइट। सिमिलरली कोई भी गवर्नमेंट ने अगर किसी लेट्स से की सेटअप बाय एनी लेट्स से गवर्नमेंट ऑफ गुजरात which is for the victims which were there in the earthquake of the Gujarat, so any earthquake relief fund which have been established by the Maharashtrian government, Gujarat government, so that will also be eligible for getting the benefit. Similarly कोई भी ऐसा ट्रस्ट है, कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन है, कोई भी फंड है, राइट, जिसका एंटायर इंटेंट क्या है कि रिलीफ प्रोवाइड करना जितने भी आपकी अर्थक्वेक के विक्टिम्स हैं गुजरात में, राइट, ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ योर यू कुड से 2001 and 2, दैट पीरियड में अगर आपने कुछ भी कंट्रीब्यूशन करा है, सो उस टाइम पे अगर कोई ट्रस्ट आपके एस्टैब्लिश थे, सो यू विल बी गेटिंग अ बेनिफिट फॉर योर यू कुड से डोनेशंस दैट यू हैव मेड एंड यू विल बी गेटिंग अ 100% डिडक्शन फॉर दीज थिंग्स, राइट। सिमिलरली अभी गवर्नमेंट ने पीएम केयर्स फंड जो था कोविड के पीरियड में आपको गवर्नमेंट ने जो प्राइम मिनिस्टर हैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ही हैज कम अप विद द पीएम केयर्स फंड, अगर आप उसमें भी डोनेट करते हैं सो यू विल गेट द 100% डिडक्शन अंडर योर सेक्शन 80G ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। सिमिलरली आपका क्लीन गंगा फंड है, स्वच्छ भारत कोष है, अफ्रीका रेवेन्यू फंड है, प्राइम मिनिस्टर्स अर्मेनिया अर्थक्वेक रिलीफ फंड्स हैं, ये सब फंड जितनी भी आपने लिस्टिंग देखी है, दीज ऑल फंड्स आर एलिजिबल फॉर 100% डिडक्शन and that too without any qualifying limit. That means कोई अपर आपकी कैपिंग नहीं है, आपने जितना डोनेट करा है वो सारा आपका एलिजिबल है अंडर सेक्शन 80G कि आप उसके ऊपर अपनी डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं, राइट। नाउ आई से the second type, that is type B, which are the funds which are eligible for a 50% deduction without the maximum limit. That means यहाँ पर भी आपका कोई भी क्वालिफाइंग लिमिट नहीं है। अगर हमें जैसे इसमें है हमारे पास 4 बेसिक फंड आते हैं हमारे पास, वो है हमारा जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, पीएम ड्रॉट रिलीफ फंड, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, राजीव गांधी फाउंडेशन। सो अगर आप इन 4 फंड्स में आप कुछ भी डोनेशन करते हैं, आपने जितना भी डोनेट करा होगा उसका 50% आपको अलाउड होगा एज डिडक्शन। Now one important thing with respect to this year's budget, यानी कि अब जो हमारा ये जो financial year है, this year onwards गवर्नमेंट ने कहा कि अब जो फंड्स एलिजिबल हैं 50% डिडक्शन में, उसमें से जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, राजीव गांधी फाउंडेशंस, now they are eliminated from this list. That means now onwards if you are only making the donation to a PM drought relief fund,
then only you will be eligible for a 50% deduction. इसके अलावा चाहे अगर आप जवाहरलाल नेहरू फंड में करें, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी फाउंडेशन में करें, then you will be not getting the deduction under your section 80G. Right? So these three have now been eliminated as per the budget. Right? Now जब हम बात करते हैं कि नेट क्वालिफाइंग लिमिट, राइट, हमने कहा कि टाइप सी एंड डी के लिए हमारी एक क्वालिफाइंग लिमिट है. तो वो क्वालिफाइंग लिमिट क्या है? हम बेसिकली बात करते हैं कि क्वालिफाइंग लिमिट है आपका 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम. यानी कि जितनी भी आपकी एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम आएगी उसका 10% जो है उतने तक जो है आपका एक अपर कैपिंग आपकी सील आउट कर दी गई कि इसको आप एक्सीड नहीं कर सकते हैं. नाउ व्हेन आई से एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम, उसका मतलब क्या हुआ कि जितनी भी आपकी, हम जैसे अभी तक हमने किया नॉर्मल कोर्स में, ग्रॉस टोटल इनकम को हम कंप्यूट करते थे, राइट. अब उस ग्रॉस टोटल इनकम में से इस सेक्शन 80G को छोड़ के आपने जितनी भी डिडक्शंस क्लेम करी है, 80C में करी, 80D में करी है आपने, लेट्स से 80TTA में करी है, 80U में करी है, whatever other sections are there for the deductions, जितनी भी आपने डिडक्शंस क्लेम कर रहे हैं उसको डिडक्ट कर दो ग्रॉस टोटल इनकम में से. जितना भी आपकी इनकम्स हैं दैट इज एग्जाम्प्टेड, राइट, that will also get deduced from your gross total income. Similarly, अगर आपका कोई long term capital gain है, कोई short term capital gain है as per your section 111A at the rate 15%, so आपका जितना भी आपका let's say the short term capital gains जो कि taxable है 15% के हिसाब से, long term capital gains हो गए, exempted incomes हो गई, any deduction जो आप 80C से लेके 80U तक डाल रहे हैं, उन सबको डिड्यूस करने के बाद ग्रॉस टोटल इनकम में से जो इनकम आपके पास आएगी दैट विल बी योर एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम, राइट. और इस एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम का 10% तक, राइट, जो हमने लिमिट डाली है दैट इज फॉर योर नेट क्वालिफाइंग अमाउंट. अब ये कैसे फंक्शन करेगा? अब टाइप सी एंड टाइप डी को डिस्कस करने के बाद आई विल टेक एन एग्जांपल फॉर द सेम. नाउ टाइप सी सेज what are the funds that are eligible for 100% deduction subject to the maximum limit. यानी कि अब जो है, जो अभी हमने क्वालिफाइंग लिमिट की बात करी which is your 10% of adjusted gross total income, तो उस लिमिट के सब्जेक्ट तक, लेकिन ये फंड जो है ये 100% डिडक्शन मिलेगी बट इफ वी आर नॉट क्रॉसिंग द लिमिट. तो वो फंड्स क्या है? फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया में या रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ इंडिया में अगर आप कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं तो सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट दीज आर एलिजिबल फॉर 100% डिडक्शन. सिमिलरली कोई गवर्नमेंट अप्रूव्ड आपका लोकल अथॉरिटी, कोई भी इंस्टीट्यूशन जिसका एंटायर इंटेंट क्या है? प्रमोटिंग दी फैमिली प्लानिंग, right? So all these two funds when we are talking about, they are eligible for a 100% deduction but subject to a maximum limit. सिमिलरली ये तो दोनों हमारे सेंट्रिक है फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड, चाहे हम फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया में डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करें या गवर्नमेंट के थ्रू जो भी फंड सेटअप किया गया है फॉर द पर्पस ऑफ प्रमोटिंग द फैमिली प्लानिंग, सो दोस विल बी योर एलिजिबल फॉर द 100% डिडक्शन. नाउ थर्ड कैटेगरी जो फंड की आती है दैट इज इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को अगर आपने कुछ कंट्रीब्यूट करा है या एनी अदर इंस्टीट्यूशन विच इज देयर एस्टैब्लिश इन इंडिया for the development of infrastructure for the sports and games in India or for any sort of your sponsorships of sports and games in India, then whatever deduction you will be giving, donation you will be providing to these institutions, they will be allowed to a company. Now it says to a company, that means अगर कोई और इंडिविजुअल इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में कंट्रीब्यूट करता है तो इंडिविजुअल को उस डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा because this benefit is only available to a company. That is why if I say that Indian Olympic Association, the contribution has to come up from a company, right? And this is eligible for your type C category, which is you could say the list of categories which are eligible for a 100% deduction subject to your qualifying limit. Similarly, type D, the very last category, which is the funds which are eligible for a 50% deduction but subject to a maximum limit. So कोई भी notified temples, any mosque, any gurdwara, any church, right, you are providing a donation to them
they will be eligible for a 50% deduction and subject to a maximum limit, right? Similarly, you are providing the donation to any, you could say, fund which have been established by the government but other than the purpose of family planning, because if it has to be for the purpose of family planning, then that means that will be eligible for your type C category, right? Now, and similarly, any corporation that you have set up for promoting the interest of the minority community, that will also be eligible for a 50% डिडक्शन। यानी कि अगर आप किसी भी टाइप के मंदिर में, गुरुद्वारे में, मॉस्क में, चर्च में आपने डोनेशन करा है, किसी भी चैरिटेबल पर्पसेस के लिए अपार्ट फ्रॉम योर फैमिली प्लानिंग आपने कंट्रीब्यूट करा है, कोई भी ऐसे फंड में करा है जिसका इंटेंट ऐसा है कि विच इज सॉर्ट ऑफ प्रमोटिंग द माइनॉरिटी कम्युनिटी, देन यू आर एलिजिबल फॉर, यू कुड से, द डिडक्शन अंडर योर टाइप डी कैटेगरी, राइट? Similarly, कोई भी अथॉरिटी विच हैज बीन कंस्टिट्यूटेड इन इंडिया एंड उसका इंटेंट क्या है, हाउसिंग अकोमोडेशन की नीड को फुलफिल करना, प्लानिंग, डेवलपमेंट, इम्प्रूवमेंट ऑफ योर सिटीज, टाउन्स, विलेजेस, या इन सब कैटेगरीज को जो है डेवलप करना या प्रमोट करना अगर इंटेंट है ऐसी अथॉरिटी का, आपने वहाँ डोनेट करा है, सो देन it will be eligible for a deduction under your type D category. Similarly, कोई ऐसा और फंड जो कि बाकी 80G सबसेक्शन 5 की कंडीशंस जो हैं उनको फुलफिल करता है और आपने उसमें इन्वेस्ट करा है, then you are eligible for claiming the deductions under your type D, which is 50% of the amount subject to your qualifying limit, right? Now, when I say this, qualifying limit, I have already explained to you what is our qualifying limit. Let us just take a very, quick example. So, let's just assume कि हमारा gross total income for the year is 15 lakh rupees, right? And one person, he has made a donation of rupees 1 lakh to any NGO, and that NGO is, eligible for a 50% deduction, but subject to a qualifying limit of 10%. दैट मीन्स वॉट कि आपने किसी एनजीओ में कंट्रीब्यूट करा है और वो एनजीओ जो है आपका 50% कैटेगरी में एलिजिबल है, एंड दैट टू सब्जेक्ट टू अ क्वालिफाइंग लिमिट ऑफ 10%। दैट मीन्स टाइप डी में उसने इन्वेस्ट करा है, राइट? एडिशनली उसने डिडक्शन क्लेम करा है 1.5 लाख का अंडर सेक्शन 80C, एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स हुए हैं उसे फ्रॉम सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 1 लाख। नाउ एज आई मेंशन कि हमें क्या कंप्यूट करना है, एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम, राइट? सो एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास गिवन है उसकी इनकम कितनी है, 15 लाख, राइट? अब इस 15 लाख रुपीज में से जितनी मैंने जैसे कहा था डिडक्शंस 80C से 80U तक 80G को छोड़कर जो हुई, तो इस केस में उसने 1.5 लाख रुपीज इन्वेस्ट करा है तो वो डिड्यूस कर दिया। 1 लाख रुपीज का उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स हुए हैं, हमने उसको भी डिड्यूस कर दिया। सो वी कम टू अ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ आर 12.5 लाख रुपीज, राइट? तो ये अब हमारी बन गई 12.5 लाख रुपए की एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। अब इस 12.5 लाख रुपए का मतलब क्या हुआ, ये एडजस्टेड जीटीआई है और हमारी क्वालिफाइंग लिमिट क्या कहती है, 10% ऑफ दिस योर एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। इसका मतलब क्या हुआ कि इस केस में हमारा क्वालिफाइंग लिमिट कितना होगा, इट विल बी योर 10% ऑफ योर दिस 12,50,000 रुपीज विच विल बी 1,25,000 रुपीज, करेक्ट? यानी 1,25,000 रुपए की आपकी क्वालिफाइंग लिमिट है। अब क्योंकि ये टाइप डी में था, टाइप डी क्या कहता है, 50% ऑफ द फंड्स which you have donated subject to a qualifying limit। तो इसको हमें कैसे कंप्यूट करना है, हमने लेना है 50% ऑफ द लोअर ऑफ जितना भी आपने अमाउंट डोनेट करा, राइट? या फिर जो आपकी क्वालिफाइंग लिमिट है, यानी कि जितना, फर्स्ट पॉइंट इज आपने कितना अमाउंट को डोनेट करा, राइट? सेकेंड पॉइंट इज आपका क्वालिफाइंग लिमिट क्या है। अब जो इन दोनों का लीस्ट आएगा आपका अमाउंट, उसका 50% आपको अलाउड है as deduction under section 80G। That means इस केस में आपने अमाउंट डोनेट करा था 1 लाख रुपीज का, राइट? एंड आपकी क्वालिफाइंग लिमिट कितनी आई, 1,25,000। सो इन दोनों का जो लीस्ट फिगर हुआ, राइट, विच इज योर 1 लाख रुपीज, करेक्ट? अब इस 1 लाख का 50%,
यानी कि 50,000 रुपीज़ जो हैं वो आप जो हैं उसके लिए एलिजिबल हैं कि आप डिडक्शन क्लेम कर सकें अंडर योर सेक्शन 80G। नाउ व्हेन आई से ना 50,000 वो हमने इसलिए लिया क्योंकि 50% ऑफ की जो थी लिमिट इस केस में टाइप डी के अकॉर्डिंगली आपकी अलाउड थी। बट अगर इसी केस में अगर मैं ये कह दूं कि ये जो है टाइप सी कैटेगरी का है, दैट मीन्स कि आपने जितना फंड आपने कंट्रीब्यूट करा वो आपने 50% नहीं 100% कैटेगरी में करा, तो उस केस में क्या होगा, हमने 1 लाख लिया था और 1,25,000, राइट। सो दोनों का लीस्ट रूल वुड बी द सेम, दोनों का लीस्ट होगा आपका 1 लाख रुपीज, बट नाउ 100% ऑफ दैट 1 लाख विल बी कंसिडर्ड अगर फंड्स आपके टाइप सी कैटेगरी के होते, करेक्ट। और अगर ये टाइप सी और डी दोनों नहीं होता, क्वालिफाइंग लिमिट नहीं होती, तो टाइप ए से अगर बिलोंग करता तो एंटायर 1 लाख रुपीज, टाइप बी से बिलोंग करता तो 1 लाख का 50% विदाउट लुकिंग फॉर योर क्वालिफाइंग लिमिट। सो दैट मीन्स पूरा आपका जो 50,000 रुपीज था, 1 lakh का half, that will be your 50,000, that would have been eligible. So I have shown you, I have told you कि किस तरीके से टाइप ए में आपका अमाउंट डिफर करेगा, टाइप बी में आपका अमाउंट डिफर करेगा, टाइप सी एंड टाइप डी में आपका अमाउंट जो है वो डिफर करेगा। नाउ जब हम 80G की डोनेशंस की बात करते हैं, डोनेशन आपकी तभी एलिजिबल होती है डिडक्शन के लिए अगर आपके डोनी ने जो है प्रॉपर डिक्लेरेशन करा है कि उसने सो एंड सो अमाउंट जो है इट हैज रिसीव फ्रॉम अ डोनर एंड ही हैज फाइल्ड अ स्टेटमेंट फॉर द सेम। अगर स्टेटमेंट नहीं फाइल इन करी है तो then it cannot be claimed in your ITR. So a statement has to be filled in by the donee, and even when you will be going for up your ITR, तो वहाँ पर भी आपको you are supposed to submit some particulars regarding कि आपने किस इंस्टीट्यूशन को दिया, राइट, कितना अमाउंट, किस डेट पर, मोड ऑफ पेमेंट आपका क्या था, और ऑनलाइन दिया है तो ऑनलाइन का यूटीआर नंबर क्या था, यूनिक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नंबर जो था आपका, राइट, या आपका रेफरेंस नंबर क्या था, ये सारी डिटेल्स विद द डेट मैपिंग आपको ये पुट इन करना होगा, राइट। तभी आप जो है वो जब वेरीफाई होगा, एलिजिबल उसको कंसिडर किया जाएगा, तभी वो आपको डिडक्शन अलाउएबल होगी। सिमिलरली जब मैं मोड ऑफ पेमेंट की बात कर रही हूँ, जितनी भी डोनेशंस की हमने बात करी है, अगर 2,000 रुपये से ऊपर 1 रुपये की डोनेशन भी है तो इट हैज़ टू बी थ्रू योर चेक, डिमांड ड्राफ्ट, ऑनलाइन मोड्स जितने भी आपके हैं, आजकल कितने ऑनलाइन मोड्स आपके पास है, नेट बैंकिंग है, यू हैव IMPS, यू हैव RTGS, यू हैव UPI, राइट। सो यू कैन डू इट थ्रू एनी ऑनलाइन मोड, यू कैन डू इट थ्रू द चेक, यू कैन डू इट थ्रू द डिमांड ड्राफ्ट इफ द अमाउंट ऑफ डोनेशन is more than 2,000, right? अगर 2,000 से कम है, अगेन बाकी ऑप्शन तो आपके पास ओपन है, चेक हो, DD हो या ऑनलाइन हो, बट एक और ऑप्शन आपके पास ओपन अप हो जाता है, दैट इज योर कैश, राइट। सो कैश के लिए डोनेशन जो है इट हैज़ टू बी बिलो 2,000 रुपीज़। अगर 2,000 से ज़्यादा है तो आप डोनेशन जो है कैश में बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। सो बेसिकली सेक्शन 80G जिसका मच टॉक्ड अबाउट सेक्शन है कि कितना डोनेशन, किसी को भी डोनेशन करो आप एलिजिबल हैं डिडक्शन क्लेम करने के लिए, रियलिटी इज नॉट लाइक दैट। There is a specified list which has been provided by the government. वो list time to time update होती है, so please make a cross check of the same। जब भी आप donations करें, चाहे किसी भी आप मॉस्क में कर रहे हैं, किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में कर रहे हैं, या किसी भी ऐसे फंड में जो कि लेटर सपोज अर्थक्वेक रिलीफ फंड है या एनी अदर फंड जिसका इंटेंट क्या है वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, बट डू क्रॉस चेक whether it is set up as per the provisions of the government, whether it is under the eligible categories of your type A, type B, type C or type D, right? And then you see whether it is subject to a qualifying limit or not a qualifying limit. Then further on also take care of the point कि जब भी आप donations कर रहे हैं तो 2,000 से ऊपर की अमाउंट की डोनेशन कैश में ना करें, क्योंकि अगर आप करते हैं विदाउट नोइंग अबाउट द सेम, जितना भी आपने डोनेशन करा है 2,000 से ऊपर के अमाउंट का, वो सारा आपका इनएलिजिबल हो जाएगा। यानी कि आपने डोनेट तो करा बट अब आप जो है एज अ डिडक्शन उसमें वो बेनिफिट जो है क्लेम नहीं कर सकते हैं, राइट। सो ये जो था हमारा सेक्शन 80G, ये रिलेटेड टू हमारी डोनेशन था। फर्दर सेक्शन जो है हमारे 80GG, 80GGA, 80GGB एंड सो ऑन विल बी टेकिंग अप इन द नेक्स्ट सेगमेंट। सो दैट्स इट, थैंक यू।